students, today I am going to take one question from the chapter relations, where we are going to prove that it is equivalence relation. This is a question from class 12, first chapter, that is relations. So the question is already written on the board, that is, show that a relation R on a set A given by the set A is having the elements x, where x is an integer and x is from -1 to 15. There are many elements here, and the relation is given by a comma b such that a minus b is divisible by 3. Show that हमने पहले लिख दिया था is equivalence, and यहाँ पे एक और ऐड ऑन कर देता हूँ, also find the equivalence class of let us say 2, और 2 की जगह हम लोग कोई और एलिमेंट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ मान लिख लेता हूँ। ये बीच में मैं बताऊंगा आपको कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। अब आपको इसको प्रूव करना है, तो सिंस वी आर हैविंग मेनी एलिमेंट्स, it is very difficult for us to make all the ordered pairs. So we will not make the ordered pairs. We are going to do the proving part where we are going to take general elements. तो यहां देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, proof I am going to take the first one. जो रिफ्लेक्सिव है, ये आप लोगों को अपनी नॉलेज से डेवलप करनी होगी। इसमें कुछ भी हम लोग अभी रिलेशंस की हेल्प नहीं ले पाएंगे। रिलेशन ने इतना बताया कि दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्ट करने से डिविजिबल बाय 3 निकले। अच्छा, 3 से डिविजिबल कौन होंगे? जिनमें 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे 6, 3 into 2 9, 3 into 3 12, 3 into 4 we can have 99, that is 3 into 33. So we are writing here, for one element A belonging to set A, we know what we know. We know that A minus A, अगर एक नंबर अपने आप से माइनस हो तो 0 बनता है। 0 को 3 into 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 आ चुका है। तो हम लोग, so this is 3 into 0 means is divisible by 3. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A minus A is divisible by 3. So this implies A comma A will be there in the relation R. Clear? If that is the case, we say R is reflexive relation. Clear? So यहां हमने कुछ सोच के कुछ डेवलप करनी चीज है। When we come to symmetric and transitive, हमें एक या दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में से ही लेने हैं और उसका रिवर्स या उसका लिंक को हम लोगों ने जनरेट करना है। तो यहां सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड फेज, लेट अस टेक A comma B an ordered pair from the relation. अगर ये रिलेशन का पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ A minus B is divisible by 3. इसका मतलब ये हुआ A minus B को 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो 3 into something होगा ना, where this alpha which I have taken is some integer. तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव की बात चल रही है, नेगेटिव भी आ रहा है बीच में, चल जाएगा। हम यहाँ पे z भी दे सकते हैं। z एक इंटीजर है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। So what we can see, minus is taken common. I am writing 3 alpha. Alpha belongs to z, so B minus A is minus 3 alpha, और माइनस को आगे रहने दो अल्फा के पास, so we can say minus alpha also integer, therefore B minus A is divisible by 3. This implies B comma A belongs to R. अब ये क्या प्रूव हुआ? हमने एक डिफरेंट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर लिया और हमने इसका उल्टा प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? R is symmetric relation. Clear? Now the last important part, transitive. Let A comma B belongs to R and C comma, that is continuation part, B comma C belongs to R.
अब क्योंकि हमने रिलेशन में ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं जिसमें एक दूसरे से जुड़ा है और दूसरा तीसरे से, तो मैं यहां क्या कह सकता हूं, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, एंड ये क्या कहते हैं, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अल्फा, वेयर अल्फा इज सम इंटीजर, b माइनस सी दिस इज 3 बीटा, लेट अस टेक बीटा इज सम इंटीजर। तो हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प ली, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को ऐड करने पे क्या मिला, a minus b plus b minus c is equal to 3 alpha plus 3 beta. So what we can say, this will get cancelled, this is a minus c which is equal to 3 common alpha plus beta. Now alpha plus beta is also integer, since alpha and beta दोनों integer है, दोनों का सम भी integer होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि a minus b is divisible by 3. We can say that a comma c belongs to R. So we can write here R is transitive relation. So when we say reflexive, transitive and symmetric, so we are numbering this one 1, this one is 2, let us say 3, so we can write here from 1 to 3 we can say R is equivalence relation. Clear? Now once we have proved that this is equivalence relation, यानी हमारे relation equivalence हो चुकी है, तो इस relation के अंतर्गत जो हम लोग एलिमेंट्स लेंगे वो बनाते हैं इक्विवेलेंट क्लास। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब है, इक्विवेलेंस क्लास में यहां डिफाइन कर देता हूं, व्हेन वी से इक्विवेलेंस क्लास इट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू, यहां 1 है तो मैं यहां रिलेटेड टू 1 कह सकता हूं अंडर इक्विवेलेंस रिलेशन। इस किसी भी, मतलब आप यहां पे, अभी तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, तो मैं यहां पे एलिमेंट दे सकता हूं a, दैट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू a अंडर द इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें यहां पूछा गया है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं डेफिनेशन बता रहा हूं किसकी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो आप कहोगे 1 और हमारी रिलेशन कौन सी है R, तो आप चेक करो कि 1 से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। तो मैं कैसी रिलेशन ले रहा हूं, जिनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो सके। सो आई विल स्टार्ट विद 1 के साथ कौन रिलेट करेगा, 1 के साथ 1 रिलेट करेगा क्योंकि आएगा 0 0 होगा 3 का मल्टीपल। आई कैन हैव 1 and 4 क्योंकि डिफरेंस -3 होगा, तो जिसको हम लोग 3 into -1 लिख सकते हैं। आई कैन हैव 1 and 7, डिफरेंस हो जाएगा हमारा -6 यानी कि 3 into -2। वी कैन हैव, again if you just check, this will have 1 comma 10, we can have 1 comma 13 क्योंकि यहां डिफरेंस होगा -9 का, यहां डिफरेंस होगा कितना, -12 का। अगेन इसके बाद जो एलिमेंट आएगा 1 comma 16 है, दिस इज नॉट देयर इन द सेट। हम इसके पीछे चलें तो 1 0 तो हो नहीं सकता, और पीछे जाओ तो 1 -2 है, -2 भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स आर 1 4 7 10 and 13। तो ये वो एलिमेंट हैं which are related to 1 under this relation, so this set will be known as equivalence class of 1। So this will give you the completion of this particular question, and even this will come for the examination also in 1 marks question. So do practice these type of questions where they can have a rehearsal of the same question, removing this bracket sign. If you put a mod, again the pattern will be same, but ये ध्यान रखिएगा कि when mod is removed we will be going to have plus minus sign. So similar question can be done for the practice. Rest of the question I will be going to take in the next coming videos. Thank you.